Ignited Minds Tutorials has recently released a comprehensive video series focusing on real numbers for Class 10 CBSE Maths. This series delves into crucial concepts such as rational and irrational numbers, as well as Euclid's division, lemma, all essential topics for students preparing for their exams. The videos aim to provide a thorough understanding of the subject matter, offering step-by-step problem walkthroughs and in-depth explanations. By covering previous year's questions, the tutorials help to familiarize students with the format and types of questions they may encounter in their exams. The content is designed to be accessible and engaging, making it easier for students to grasp complex mathematical concepts. This resource from Ignited Minds Tutorials empowers students to build a strong foundation in real numbers, enabling them to tackle exam questions with confidence. Whether students are looking to revise key concepts, improve their problem-solving skills, or simply gain a deeper understanding of the topic, this video series offers valuable support. With the help of these tutorials, students can enhance their knowledge and excel in their Class 10 CBSE Maths exams. Okay, बच्चा पार्टी, in rational numbers we were doing PYQs. प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे थे भाई साहब. द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 5 एंड द LCM इज 200. फाइंड द प्रोडक्ट AB. ठीक है, तो हमको मालूम है भाई साहब आपके दो नंबर्स का समझ लो. अगर ये HCF है, HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB दैट इज इक्वल टू द नंबर्स इटसेल्फ, दैट इज A इंटू B. ऐसा वी नो दिस राइट. तो ए बी का भाई साहब कितना हो जाएगा, ए बी नोट और पेन. तुम मसल दिखाओ भाई साहब, तुम नोटबुक निकालेंगे जरा. ठीक है, ये हो गया ए बी. एच सी एफ ऑफ टू नंबर्स ए बी इज 5. तो एच सी एफ ऑफ ए बी इज 5 एंड एल सी एम इज 200. तो 5 इंटू 200, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 1000. दैट विल बी 1000. तो ए बी का कितना हो गया, ए बी का हो गया आपका 1000. ठीक है, 2019 का क्वेश्चन है. What is HCF of smallest prime number and the smallest composite number? आपका smallest prime number, so क्या हो जाएगा, smallest prime number is what? 2 smallest prime number is how much people? 2. and smallest composite number क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, smallest composite number, this is basically equal to 4 है ना. सबसे पहला composite number कौन सा है आपका, 4 है, और स्मॉलेस्ट आपका प्राइम नंबर क्या है, 2 है. 2 और 4 का भाई साहब आपको क्या पूछा है, HCF पूछा है. दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 है ना. सो 2 4 का HCF भाई साहब कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 2. ठीक है, 2018 का क्वेश्चन है. ओके, शो दैट एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ 6 raised to n वेयर n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर्स कैन नेवर एंड विद द डिजिट. ठीक है, तो आपका देखो यहाँ पे, हम यहाँ पे अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें, देखो 6 raised to n मतलब क्या हो जाएगा, 2 into 3 raised to n. ठीक है, और हमको मालूम है, देखो हमने ये रैशनल शायद 8 में पढ़ा था. देखो a into b raised to n क्या होता है, a raised to n into b raised to n होगा. ठीक है, सो दैट विल बी 2 raised to n into 3 raised to n. ठीक है, therefore prime factorization of 6n does not contain any prime factor of 5. भाई देखो, अगर नंबर में 0 आना है ना, कोई भी नंबर जो 0 से एंड हो रहा है उसका प्राइम फैक्टर में 5 आना ही आना है. आगे किसी भी नंबर में अगर एंड नंबर आपका 0 है, कोई भी XYZ कोई भी नंबर हो, लेकिन एंड अगर आपका 0 है तो उसमें प्राइम फैक्टर में आपका भाई साहब 5 आना ही आना है. ठीक है, लेकिन यहां पे अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन देख रहे हैं इसका, देखिए 6n का प्राइम फैक्टराइजेशन आपको क्या दे रहा है, 2 raised to n into 3 raised to n. ये तो भाई साहब है ही नहीं यहाँ पे. ठीक है, सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं शो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 6n. तो सिंस 6n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर. ठीक है, सो आपका 6n कैन नेवर एंड विथ डिजिट 0. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? अगर एंड होता था 0 से तो उसके प्राइम फैक्टर में 5 का आना बनता था, लेकिन प्राइम फैक्टर में 2 raised to n है और 3 raised to n है. आपका भाई साहब 5 है ही नहीं. ठीक है, समझ में आ रहा है ये. ओके, द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 27 एंड देयर LCM
तो आपको मालूम है भाई साहब HCF of let's say two numbers a b into their LCM of two numbers that is a b, this is equal to the product of the numbers a into b. ठीक है, HCF a b मतलब यहाँ पे कितना दिया हुआ है देखो, HCF of टू नंबर्स a and b, तो यहाँ पे आपको कितना दिया हुआ है भाई साहब 27, तो ये आपको दिया हुआ है भाई साहब 27, ठीक है। एंड देन LCM इज कितना है भाई साहब 162, दिस इज इक्वल टू वन ऑफ द नंबर्स इज a, लेट्स से a आपका क्या है 54 है, इनटू b, आपको b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा बाड़ी 27 इंटू 162 अपॉन 54, सो 27 1 जा 27, 27 2 जा 54, 2 8 जा 16 और 1, तो b की वैल्यू कितनी हो गई बोलो 81, ठीक है। सो देयरफॉर द अदर नंबर इज 81, द फर्स्ट नंबर इज, तो आपका भाई साहब अदर नंबर इज 81, ठीक है, अदर नंबर आपका हो गया भाई साहब 81, 2017 का क्वेश्चन है। ओके 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 2015 का क्वेश्चन है बच्चा बाटी, देखा, ठीक है, 2015 का आपका 2015 का क्वेश्चन है, देखो LCM ऑफ टू नंबर्स इज 2079 and their HCF is 27. If one of the numbers is 297, find the other number. बिल्कुल सेम जिस तरह से आपने पिछला वाला सवाल किया, तो आपका HCF of two numbers A B into LCM of two numbers that is A B, that will be equal to A into B. Making sense people? HCF of AB is how much? 27. LCM of AB is how much? LCM of two numbers is 2079 is equal to one of the numbers is 297, तो 297 into B, तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा बाड़ी 27 into 2079 अपॉन 297, ठीक है। 27 देखो इससे जा रहा है भाई साहब, दिख ही रहा है भाई साहब, 27 1 जा 27, 27 1 जा 27, 11 2079 है, तो 2079 11 1 जा 11, 97 11 8 जा 88, 11 8 जा 88, 9 प्लस 8 17, 11 9 जा 99, ठीक है भाई साहब, तो ये हो गया आपका कितना 99, तो B की वैल्यू कितनी हो गई बच्चा बाटी 99। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? B की वैल्यू हो गई 99, तो द अदर नंबर इज व्हाट? हाँ 189, अरे सॉरी 189, आई एम सो सॉरी। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर द अदर नंबर इज 189, ठीक है बच्चा बाड़ी। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 16 एंड 24 लीव्स द रिमाइंडर 7 इन ईच केस। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई साहब, आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, ठीक है। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 16 एंड 24 लीव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस। इसको कैसे करेंगे भाई साहब, तो तीनों में से 7 माइनस कर देंगे, ठीक है। सो हम यहाँ पे करेंगे 12 माइनस 7, 16 माइनस 7 और 24 माइनस 7, सो दैट विल बी हाउ मच 5 9 एंड क्या हो गया भाई साहब इसका 17 है ना, 5 9 और 17। अभी क्या करेंगे भाई साहब, इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो निकालिए भाई साहब 5 9 और 17 का, हम ही निकालिए यहाँ पे बैठ के, राइट। या तो इसका एक शॉर्टकट बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। आप क्या करो, क्योंकि इसका ना एलसीएम निकालना मुश्किल है। देखो आप एक काम कर लो, इन तीनों का भाई साहब एलसीएम निकालो और उस पर 7 ऐड कर दो, बजाय इसके कि इनसे हम 7 माइनस करें, इन तीनों का एलसीएम निकालो और उस पर 7 ऐड कर दो, ठीक है। तो हमने तीनों का एलसीएम निकाला, देखो 12 कितना होता है आपका, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, 16 है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16,
24 है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। एलसीएम कितना ही हो जाएगा बोलो, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू, यहाँ पे 2 स्क्वायर को नहीं लेंगे, इस 2 स्क्वायर को ले लेंगे भाई साहब, यहाँ पे इस 2 स्क्वायर को नहीं लेंगे, इस 3 को नहीं लेंगे, बचेगा 2। तो ये हो गया आपका 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, 48 2 तो 96 हो रहा है यार, क्या सही होगा ये? नहीं, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 2 स्क्वायर, तो अपन यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं ना, 2⁴, अगर यही पूरा ले ले हम, 2⁴ इंटू, तो ये भी आ जाएगा उसमें, है ना, ये भी आ जाएगा, इंटू 3, है ना, 3 आ जाएगा भाई साहब, क्लियर है? तो 2⁴ इंटू 3 मतलब 16 3 ज़ा 48 हो गया। 48 + 7 कर दो भाई साहब, 8 + 7 15, 4 + 1 5, 55, ठीक है। इस नंबर को फाइंड, इस नंबर को अगर मैं 12 से, देखो भाई साहब, अगर 55 को मैं 12 से डिवाइड कर रहा हूँ, 12 4 ज़ा 48, कितना आया आंसर भाई साहब? 7, ठीक है। अगर 55 को मैं 16 से डिवाइड कर रहा हूँ, 16 3 ज़ा 48, अगेन वही 7, ठीक है। अगर 24 मतलब 55 को मैं 24 से डिवाइड कर रहा हूँ, 24 2 ज़ा 48, अगेन व्हाट डू आई गेट? 7। तो एक सिंपल सा हिसाब है कि तीनों नंबर का आप क्या कर लो, एलसीएम निकाल लो और उस पर 7 ऐड कर दो, क्योंकि यहाँ पे 7 इन ईच केस है, ठीक है। अगर अलग अलग नंबर्स होते तो भाई साहब इनमें से आप अलग अलग नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते थे, ठीक है। आपने सीधा एलसीएम में ये ऐड कर दिया, सो दिस विल बी बेसिकली 55, ठीक है। ओके ओके ओके, चलो भाई साहब 2023 का ताजा सवाल है, ठीक है। 2 numbers are in the ratio of 2:3 and their LCM is 180. What is the HCF of these numbers? So let, हम यहाँ पे मान लेते हैं 1 number, let 1 number be, हम यहाँ पे मान लेते हैं 2 है ना, 2x, ठीक है। So therefore the other number is कितना हो जाएगा बोलो? 3x, ठीक है, 3x भाई साहब। तो LCM is 180, तो आप भाई साहब HCF 2x 3x, ठीक है, एंड 2 इंटू LCM ऑफ 2x 3x इज इक्वल टू 2x इंटू 3x, ऐसा लिख सकते हैं कि 2x इंटू 3x, ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच? 6x का स्क्वायर। LCM की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई साहब? 180, ठीक है। What is the HCF of these numbers? So HCF ये हो गया भाई साहब, HCF of 2x and 3x, तो ये कितना हो जाएगा बोलो? This will be 6x by 180. What is the HCF of these numbers? कैसे निकालेंगे भाई साहब, इसको बताइए। 6x by 180, 6x का स्क्वायर हो गया ना, सॉरी, 6x का स्क्वायर by 180। भला जल्दी से भला। यहाँ पे आपके लिए 2 अननोन क्वांटिटीज है, देखो, एक तो ये नंबर x, आप ध्यान से सोचो, यहाँ पे एक नंबर है 2x और दूसरा नंबर है 3x, इनका HCF क्या हो जाएगा? हाँ नहीं, HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना। इसको अपन नहीं, क्यों 1 होगा भाई साहब? दिख तो रहा है तुमको। 2x को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू एक्स, और 3x को क्या लिख सकते हो? 3 इंटू एक्स। तो इनमें ये तो कॉमन हो गया ना, HCF हो गया ये, तो इनका HCF क्या हो जाएगा बोलो? x, ठीक है। तो इस HCF की जगह पे क्या लिख सकते हो बच्चा बाड़ी, बताओ? यू कैन राइट दिस एज x इंटू 180 इज इक्वल टू 6x का स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये x और ये x कैंसिल हो गया, तो 6x की वैल्यू कितनी हो गई बोलो? 180। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा बाड़ी? 180 बाई 6, दैट वुड बी 30। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 30। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? अब समझ में आता है ये, ठीक है। What is the HCF of these numbers? X की वैल्यू 30 आ गई और यही HCF की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। So HCF is basically 30। क्लियर है? Are we clear on this one? Okay. Explain why 2 into 3 into 5 plus 5 and 5 into 7 into 11 plus 7 into 5 are composite numbers. फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलता है भाई साहब? देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, एक नंबर हो गया 2 into 3 into 5 plus 5। आप इन दोनों में से 5 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो 5 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 प्लस 1 लिख सकते हैं ऐसा भाई, ये 2 इंटू 3 और ये 1, सो ये हो गया 5 इंटू 7। सो प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज अ कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है।
प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर प्राइम नंबर्स इज अ कॉम्पोजिट नंबर भाई साहब, ठीक है, इसीलिए कॉम्पोजिट नंबर हो गया, ठीक है। चलो इस पे आते हैं, देखो 5 इंटू 7 इंटू 11 प्लस 7 इंटू 5, इसमें से भी भाई साहब क्या कर सकते हो, 5 और 7 को कॉमन चुन सकते हो कि नहीं दोनों में से, ठीक है। तो 5 इंटू 7 को बाहर निकाला, अंदर क्या बचेगा 11 प्लस 1, सो दैट विल बी 5 इंटू 7 इंटू कितना हो गया 12, 2 को अपन क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 12 को अपन लिख सकते हैं 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अगेन इट्स बेसिकली आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्राइम नंबर्स, सो दिस विल बी बेसिकली अ कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर्स इज गोइंग टू यील्ड यू अ कॉम्पोजिट नंबर, क्लियर है? ओके। HCF of 65 and 117 is expressible in the form of 65n minus 117, then find the value of n. 2019 का क्वेश्चन है, देखो 65 को अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, अरे किसका मल्टीपल है 13 का, 5 इंटू 13 लिख सकते हैं। 117 इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, 13 से 13 इंटू कितना जाएगा 9 ना, तो ये 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 13, ठीक है, क्लियर है? ओके, तो इसका HCF कितना हो जाएगा बोलो 13 विल बी द HCF। अभी देखो यहाँ पे इसका मतलब इसका HCF इन दोनों का, अरे भाई साहब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये HCF जो होगा 65 और 117 का वो कितना हो जाएगा 13, ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो HCF कितना हो गया 13, मतलब अपन क्या लिख सकते हैं 65n माइनस 117 इज इक्वल टू 13, तो 65n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 प्लस 117, 65n की वैल्यू हो गई 7 प्लस 3 10, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, ठीक है। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 130 बाई 65, ठीक है, विच इज़ वॉट 2, n की वैल्यू कितनी हो गई 2, बस खत्म, समझ में आतम, क्लियरम पीपलम, ठीक है। HCF अभी भाई साहब प्राइम फैक्टराइजेशन, ये तो भाई साहब एकदम फालतू लल्लू पंजू सवाल है, ठीक है। आप भाई साहब यहाँ पे करोगे 612 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 230 ज़ा 60 और कितना बचा 2 4 ज़ा 12, है ना, यही बचा ना 60, हाँ 2 6 ज़ा 12 सॉरी, ठीक है। 2 15 ज़ा 30, 2 3 ज़ा 6, 6 7 8 1 9, 3 से जाएगा ये, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 17 इंटू 1, तो आप 612 को भाई साहब क्या लिख सकते हो, 612 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 17, ठीक है। 1314 को अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 7 18, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, 10 11 1 12, 3 7 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9, ये हो गया आपका 73 1 ज़ा 73 प्राइम नंबर हो जाएगा भाई साहब, 73 आपका प्राइम नंबर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो 1314, इसका कितना हो गया बोलो ना, बोलो 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 73, HCF कितना हो जाएगा इसका भाई साहब 3 का स्क्वायर, तो दिस विल बी 3 का स्क्वायर दैट इज़ 9, ठीक है। हाँ सॉरी 2 भी होगा ना, सॉरी यहाँ पे 3 स्क्वायर इंटू 2, आई एम सो सॉरी, दिस विल बी 3 स्क्वायर इंटू 2, सो दैट विल बी 9, क्योंकि यहाँ पे एक 2 भी है ना, यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे एक 2 है, सो रहा है 9 2 ज़ा 18, सो दिस विल बी 18, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेस 5050 एज अ प्रोडक्ट ऑफ, फालतू वाले सवाल हैं यार ये। 5050 का भी भाई साहब 2 25 25 बाबा 5 5 ज़ा 25 0 5 ज़ा, ठीक है, 5 10 ज़ा 50 और 1 101 प्राइम नंबर हो जाएगा ना, 101 और ये हो गया, तो 50 नहीं, 101 जाएगा क्या, किसी के टेबल में आता है क्या यहाँ पे?
क्या दिया हुआ है, हाँ ठीक है 101 नहीं जाएगा भाई सर, ठीक है। तो आपका 5050 क्या हो जाएगा बोलो, 2 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 101, ऑल दीज आर बेसिकली प्राइम, ठीक है। एज अ प्रोडक्ट इज इट यूनिक, येस इट इज़ यूनिक, बस अब एक ही ऐसा मिलेगा आपको नंबर 5050 का, और कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जिसका सेम प्राइम फैक्टर्स हो, ठीक है। तो दैट व्हाट इज मेंट बाय यूनिक। शो दैट द नंबर्स 231 एंड 396 आर नॉट को प्राइम। को प्राइम मतलब क्या होता है, जिनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक है। 2 3 1, 3 + 1 4 5 6, तो ये 3 से जाएगा, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 7 11 जा, और ये हो गया आपका 11 1 जा, ठीक है। सो 231 को अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, 3 इंटू 7 इंटू 11। 396 को क्या लिख सकते हैं बोलो, 396, 2 19 जा 38 और 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 3 33 जा, 3 11 जा, और फाइनली 11 1 जा। तो आप यहाँ पे 396 को क्या लिखते हैं बच्चा पार्टी, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 11, ठीक है। 11 11 भाई साहब हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा बोलो, यहाँ पे आपको शो द नंबर्स आर नॉट, भाई एक भी फैक्टर अगर आपका कॉमन हो गया तो को प्राइम नहीं हो सकता, ठीक है। HCF यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, 3 एक इसका और एक 11, तो यहाँ पे HCF आपका कितना हो गया बोलो, 33, since they have common factors, hence the numbers are not, hence they are not co-prime, not co-prime हो जाएगा। समझम बच्चा बाड़ी, ओके। अरे खत्म होएगा वो, का घर जाएगा है, का अरे घर जाएंगे, अच्छा जी बहुत अयासी आपके लाइफ में, ओके।